Very good morning students and most welcome again online classes. Today we will have the last chapter of your syllabus. It's about chapter number 7, Evans Thrice on A level. So it's about your last chapter of the syllabus of session, chapter number 7, Evans Thrice and O level. Evans is a major character of the given chapter. Thrice वो कोशिश करता है O level examination की, okay? तो यहाँ पे एक major character है Evans, नाम है उसका जेम्स रॉड्रिक इवांस. वो ट्राई करता है, कोशिश करता है O level के एग्जाम को देने की. This chapter is written by Colin Dexter. This chapter is written by Colin Dexter. So the chapter number 7, Evans Thrice and O level, written by Colin Dexter, is an interesting story. In this chapter, there is a prisoner named Evans who befools the prison officer under a laid out plan. इस chapter में एक prisoner है, नाम है उसका इवांस. ऑलरेडी आई हैव मेंशन्ड दैट. एक कैदी है, नाम है उसका इवांस, जो कि प्रिजनर ऑफिसर्स को बेफूल करता है, बेवकूफ़ बनाता है अंडर अ लेड आउट प्लान, एक सुनियोजित प्लान के तहत, मतलब वहाँ से भाग जाने में. सो लेट्स रीड चैप्टर स्टूडेंट्स विदाउट वेस्टिंग योर टाइम. चैप्टर नंबर 7, इवांस ट्राइस ऑन ओ लेवल. इवांस जो है ओ लेवल की तैयारी करता है. इवांस जो है ओ लेवल की कोशिश करता है, मतलब ओ लेवल एग्जामिनेशन है उसकी कोशिश करता है. कॉलिन डेक्स्टर ने लिखा है इसको. Should criminals in prison be given the opportunity of learning and education? क्या अपराधियों को should criminals in prison be given the opportunity of learning and education? क्या अपराधियों को जेल में लर्निंग और एजुकेशन की, सीखने और शिक्षा की के अवसर मिलने चाहिए? क्या अपराधियों क्रिमिनल्स को जेल के अंदर प्रिजन में लर्निंग और एजुकेशन की, लर्न करने की और एजुकेशन लेने की अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए क्या? It's all about the line number first, which is asked as a question to all of you by the writer, Colin Dexter. Dramatis personae, main जो characters हैं इस story में वो इस प्रकार से हैं as follow. The first one is the secretary of the examination board. The first character is the secretary of the examination board, and the second one is the governor of XII prison. The second one is the governor of XII prison, Oxford. In the very first and second page, there would be conversation between these two first characters. इन दोनों पहले करेक्टर्स के बीच में कन्वर्सेशन होगा, बातचीत होगी. एंड इट्स ऑल अबाउट द फर्स्ट वन, द सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड, जो एग्जाम के कंडक्ट करवाने की सारी व्यवस्था करवाएगा, पेपर्स भेजने की, स्टफ बाकी सारी सामग्री भेजने की. एंड द नेक्स्ट वन इज द गवर्नर ऑफ XII प्रिजन ऑक्सफोर्ड. दूसरे हमारे यहाँ पर कौन है? गवर्नर है XII प्रिजन ऑक्सफोर्ड के. एंड थर्ड वन इज द मेजर वन, वो इज द प्रोमिनेंट कैरेक्टर इन दिस स्टोरी, स्टूडेंट्स, इवांस. हिज नेम इज जेम्स इवांस, अ प्रिजनर. वो कौन है? कैदी है. Mr. Jackson, a prison officer. And the next is Mr. Stephens, a prison officer. We have two prison officers in this story. Chapter number 7, we have two prison officers. But Mr. Jackson is the senior one and Mr. Stephen is junior one. The Reverend S. McCleary, an invigilator. Reverend S. McCleary यहाँ पर एक invigilator है. The next character, एक invigilator जो एग्जाम लेने के लिए आएंगे इवांस का. सेकंड लास्ट इज मिस्टर कार्टर, डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट. मिस्टर कार्टर यहाँ पे डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट है. मिस्टर बेल डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर है. मिस्टर बेल कौन है यहाँ पे? डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर है. दीज ऑल आर द मेजर कैरेक्टर. 1 2 3 4 5 6 7 8 major characters we have. 8 characters are there, but the prominent one is Evans. All the characters will play vital role in this story to make it more interesting. But James Roderick Evans is the protagonist, is the main hero of the given story. But he is a prisoner. कैदी है. So let's say we line student. सब कुछ होगा एग्जाम कंडक्ट करवाने को लेकर के. All precautions have been taken to see to it that कि सभी सावधानियां, सभी प्रिकॉशन जो बरत लिए गए, सभी प्रिकॉशन जो है, सभी सावधानियां जो है बरत ली गई, तो ये देखने के लिए दैट द O level जमन एग्जामिनेशन अरेंज इन द प्रिजन फॉर इवांस, कि इवांस के लिए प्रिजन में, इवांस के लिए जेल में जो O level का जर्मन एग्जामिनेशन है, जर्मन लैंग्वेज का जो एग्जामिनेशन है, डजंट प्रोवाइड हिम विथ एनी मीन्स ऑफ एस्केप. उसे भाग जाने का कोई मौका उपलब्ध नहीं करवाता. मतलब इवांस वहाँ से भाग ना जाए, वहाँ से एस्केप ना हो जाए, उसे वहाँ से एस्केप होने कोई मीन ना मिल जाए, कोई तरीका या साधन ना मिल जाए. तो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए जो एग्जाम वहाँ पे अरेंज किया गया था, उसको लेके सभी प्रिकॉशंस फॉलो कर लिए गए, सभी सावधानियां बरत ली गई. इट वॉज इन अर्ली मार्च, समय था मार्च के आरंभ का. व्हेन द सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड, जब एग्जामिनेशन बोर्ड के सेक्रेटरी को ने एक कॉल रिसीव किया, रिसीव्ड द कॉल फ्रॉम ऑक्सफोर्ड प्रिजन, जेल से, और जेल का नाम है ऑक्सफोर्ड प्रिजन. क्या बोलोगे आप लोग? ऑक्सफोर्ड प्रिजन.
जहाँ के गवर्नर के रूप में आपके सामने आएंगे. इट वॉज इन अर्ली मार्च व्हेन द सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड, मार्च के आरंभ का समय था जब एग्जामिनेशन बोर्ड के सेक्रेटरी ने एक कॉल रिसीव किया. कहाँ से? फ्रॉम ऑक्सफोर्ड प्रिजन से कॉल रिसीव किया एग्जामिनेशन बोर्ड के सचिव ने. द फर्स्ट करेक्टर दैट वी हैव डिस्कस अबाउट, ओके, अबाउट वी डिस्कस फर्स्ट करेक्टर. तो कॉल रिसीव किया ऑक्सफोर्ड प्रिजन से. इट्स अ स्लाइटली अनयूजुअल रिक्वेस्ट. ये थोड़ी सी एक असाधारण सी प्रार्थना है. गवर्नर से कहा, ऑक्सफोर्ड गवर्नर से कहा, एग्जामिनेशन बोर्ड के सेक्रेटरी ने कहा, इट्स अ स्लाइटली अनयूजुअल रिक्वेस्ट, कि थोड़ी सी असाधारण सी बड़ी प्रार्थना है गवर्नर, बट आई डोंट सी व्हाई वी स्टूडेंट्स ट्राई टू हेल्प. लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें उसकी सहायता क्यों नहीं करनी चाहिए. लेकिन मुझे बड़ी अनयूजुअल सी रिक्वेस्ट है एग्ज़ाम करवाने की, लेकिन मुझे कुछ ऐसा नहीं लगता कि हमें उसकी सहायता क्यों नहीं करनी चाहिए. जस्ट द वन फैलो यू से, तुमने कहा था केवल एक ही साथी है ना, केवल एक ही व्यक्ति है ना, जस्ट द वन फैलो, केवल एक ही व्यक्ति तुमने कहा था. दैट्स इट. हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. इवान, चैप्स कॉल इवांस, उसका नाम है इवांस. ये किसने कहा? गवर्नर ने. केवल एक ही है ना, केवल एक ही है ना, किसने कहा होगा? वो सवाल पूछा होगा वहां पर किसने? सेक्रेटरी ने एग्जामिनेशन बोर्ड के. दैट्स इट. ये कन्वर्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. किसने क्या बोला? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ नहीं है कि गवर्नर सेड, सेक्रेटरी सेड. यू शुड जस्ट predict the line, sense of the given lines on behalf of your own understanding. That's it. चैप कॉल इवांस, उसका नाम इवांस है. चैप का मतलब लड़का, उस लड़के का नाम इवांस है. स्टार्टेड नाइट क्लासेस इन ओ लेवल जर्मन लास्ट सितंबर, कि लास्ट सितंबर में उसने ओ लेवल की जर्मन क्लासेस शुरू की थी. Says he is that keen to get some sort of academic qualification, और कहता है कि कुछ एकेडमिक क्वालिफिकेशन, कुछ शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के लिए वो डेड कीन है, मतलब बहुत ही उत्सुक है, बहुत ही जिज्ञासु है. इज इट एनी गुड? क्या वो अच्छा है? क्या वो लर्निंग में, एजुकेशन में अच्छा है? क्या वो अच्छा है उस और किसी और फॉर्म से अच्छा है क्या? ही वॉज द ओनली वन इन द क्लास, कि वो क्लास में केवल अकेला था. जब जर्मन लैंग्वेज की क्लासेस चल रही थी तो वो केवल अकेला था. कैद के जेल में भी क्लासेस वगैरह होती है जो पढ़ना चाहते हैं. He was the only one in the class, कि वह क्लास में अकेला था. So you can say he had individual tuitions all the time. तो तुम कह सकते हो कि, तो आप कह सकते हैं कि उसने हमेशा जो है इंडिविजुअल ट्यूशन ली, हमेशा अकेले पढ़ाई करी. Really, वास्तव में ऐसा ही था. Would have cost him a packet if he had been outside. अगर वह बाहर रहता, अगर वह बाहर होता इस ट्यूशन के, उसे कॉस्ट क्या लगता उसे? him a packet. Would have cost him a packet, मतलब would have cost him a packet का मतलब उसको पैसा देना पड़ता, उसका पैसा खर्च होता. If he had been outside, अगर वह बाहर होता. Well, let's give him a chance. चलो उसे एक मौका देते हैं. Shall we? क्या हम देंगे उसे? क्या हम उसे मौका देंगे उसे? That's a jolly kind of. ये आपकी कृपा होगी, या आपकी कृपा है. जॉली का मतलब ऐसे मजाक होता है, लेकिन यहाँ पर आपकी बड़ी कृपा होगी. और एग्जैक्टली द प्रोसीजर नाउ. अब प्रोसीजर क्या होगा, कि वास्तव में प्रोसीजर क्या होगा? सवाल पूछा गया यहाँ पे कि वास्तव में प्रोसीजर क्या होगा, क्या प्रक्रिया होगी एग्जाम करवाने की. और डोंट वरी अबाउट दैट, ये सवाल किसने पूछा होगा? प्रोसीजर क्या होगा? ये सवाल पूछा है गवर्नर ने, एज पर द लाइन, कि एग्जाम करवाने का प्रोसीजर क्या होगा. क्योंकि एग्जाम करवाने के प्रोसीजर के बारे में तो एग्जामिनेशन बोर्ड जानता है, उसके बारे में गवर्नर को क्या पता? वो तो केवल एग्जाम वहां पे कंडक्ट करवा देगा, प्रोसीजर के बारे में उसे नहीं पता. तो दैट्स व्हाई ही इज आस्किंग नाउ, द गवर्नर ऑफ ऑक्सफोर्ड प्रिजन आस्किंग नाउ व्हाट्स एग्जैक्टली द प्रोसीजर नाउ, कि अब प्रोसीजर क्या होगा, अब प्रक्रिया क्या होगी. और डोंट वरी अबाउट दैट, इसके बारे में चिंता मत कीजिए आप, इसके बारे में चिंता मत कीजिए. आई विल बी सेंडिंग यू ऑल द फॉर्म्स एंड स्टफ, कि मैं आपको जो सभी फॉर्म से स्टफ भेज दूंगा. मैं आपको सभी फॉर्म्स, मतलब जो भी क्वेश्चन पेपर है, साथ में जो भी स्टफ चाहिए होता है, पेपर, पेंसिल या कुछ और, सीजर, मैं आपको भेज दूंगा. व्हाट्स हिज नेम? यू से, क्या कहा आपने? उसका नाम क्या है? इवांस. इवांस नाम है क्या उसका? जेम्स रॉड्रिग इवांस. उसका नाम है जेम्स रॉड्रिग इवांस. कन्वर्सेशन बिटवीन द सेक्रेटरी ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड एंड द गवर्नर ऑफ ऑक्सफोर्ड प्रिजन. ये पिक करना पड़ेगा किसने क्या बोला, बता भी रहा हूँ वैसे मैं आपको. जेम्स रॉड्रिग इवांस, उसका नाम है जेम्स रॉड्रिग इवांस. इट साउंडेड रेदर ग्रैंड, कि नाम तो बड़ा शानदार लगता है. जस्ट वन थिंग गवर्नर, कि गवर्नर एक चीज और. वाज द सेक्रेटरी, जस्ट वन थिंग गवर्नर, कि गवर्नर एक चीज और गवर्नर. इज नॉट अ वॉलिन सॉर्ट ऑफ फेलो, इज ही, कि वो
वो कि ही इज नॉट अ वॉलेंट सॉर्ट ऑफ फेलो, कि वो हिंसात्मक प्रकार का लड़का तो नहीं है, वॉलेंट तो नहीं फैलाता है, हिंसा तो नहीं फैलाता है, लड़ाकू तो नहीं है, कभी मार पिटाई करने वाला हो या फिर खून करने वाला हो। जस्ट वन थिंग गवर्नर, केवल एक चीज गवर्नर, ही इज नॉट अ वॉलेंट सॉर्ट ऑफ फेलो, क्या वो वॉलेंट सॉर्ट ऑफ फेलो तो नहीं है, क्या वो हिंसात्मक प्रकार का लड़का तो नहीं है। इजी क्या वो है क्या? आई डोंट वॉन्ट टू नो हिज क्रिमिनल रिकॉर्ड और एनीथिंग लाइक दैट, आई डोंट वॉन्ट टू नो हिज क्रिमिनल रिकॉर्ड, मैं उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में नहीं जानना चाहता, मैं उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में नहीं जानना चाहता और एनीथिंग लाइक दैट, और ना ही कुछ ऐसा मैं जानना चाहता हूं, मुझे उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में नहीं जानना और ना ही मैं कुछ ऐसा जानना चाहता हूं। बट लेकिन एक सवाल है मन में, बट लेकिन नो देयर इज नो रिकॉर्ड ऑफ वॉयलेंस। जवाब दिया, किसने जवाब दिया? कॉमन सेंस की बात है, जवाब किसने दिया होगा? गवर्नर ने, क्योंकि क्रिमिनल रिकॉर्ड किसके पास होगा? गवर्नर के पास होगा, ना कि सेक्रेटरी के पास होगा। That's why he can respond about the criminal records of James Roderick Evans. No, there is no record of violence. कि नहीं उसके वॉयलेंस का कोई रिकॉर्ड नहीं है। गवर्नर ने कहा कि नहीं उसके वॉयलेंस का कोई रिकॉर्ड नहीं, उसके हिंसात्मक कार्यों का कोई रिकॉर्ड नहीं है। क्वाइट अ प्लीजेंट सॉर्ट ऑफ चैप, बड़ा प्लीजेंट सॉर्ट ऑफ चैप है, एक प्रकार का बड़ा खुश मिजाज लड़का है, वो प्लीजेंट रहता है, बड़ा प्रसन्न रहता है, बड़ा खुश रहता है। दे टेल मी, ऐसा मुझे बताते हैं वो। बिट ऑफ अ कार्ड, हल्का सा सनकी है, कार्ड का मतलब यहाँ पे सनकी है, एसेंट्रिक है। बिट ऑफ अ कार्ड, बिट थोड़ा सा सनकी है, कार्ड है थोड़ा सा सनकी है। रियली वास्तव में वन ऑफ द स्टार एट द क्रिसमस कॉन्सर्ट, कि क्रिसमस के कॉन्सर्ट जो होते हैं, क्रिसमस के जो संगीत के प्रोग्राम होते हैं, म्यूजिक जो कार्यक्रम होते हैं, उनमें जो सितारे होते हैं, जो स्टार्स होते हैं, उनमें से एक है। म्यूजिक कॉन्सर्ट्स में क्रिसमस के दौरान, क्रिसमस के फेस्टिवल के दौरान जो म्यूजिक कॉन्सर्ट्स होते हैं, उनमें जो विभिन्न तारे होते हैं, अलग अलग लोग जो बड़े जो हाई प्रोफाइल के होते हैं, इस तरह का एक बड़ा एक स्टार है। वन ऑफ द स्टार्स एट द क्रिसमस कॉन्सर्ट, वन ऑफ द स्टार्स एट द क्रिसमस कॉन्सर्ट, कि क्रिसमस के कॉन्सर्ट में जो क्रिसमस के जो म्यूजिक फंक्शंस होते हैं, उनमें विभिन्न तारों में से एक तारा है। बड़ाई करते बोल दिया। इमिटेशंस, सॉर्ट ऑफ थिंग, इमिटेशंस, नकल, तो आप जानते हैं कुछ ऐसी बातें। इमिटेशन का मतलब होता है नकल करना, मेरा मतलब है नकल वगल, वॉयलेंस के बारे में पूछते इमिटेशंस के बारे में बातें हो रही। इमिटेशंस, मेरे कहने का मतलब है इमिटेशंस, नकल वगैरह, द सॉर्ट ऑफ थिंग्स, आप ऐसी बातें जानते हैं। माइक यार्डवुड स्टफ, कुछ माइक यार्डवुड स्टफ की तरह है वो, एक पर्सनालिटी यहाँ पर है, माइक यार्डवुड स्टफ, कुछ उसकी तरह है वो। नो ही जस्ट अ कंजानिटल क्लैप्टोमैनिक, नहीं ऐसा नहीं है, वो केवल एक वह केवल एक, नो ही जस्ट अ कंजानिटल क्लैप्टोमैनिक, वह केवल कंजानिटल क्लैप्टोमैनिक है, वह केवल एक कंजानिटल क्लैप्टोमैनिक है। और कंजानिटल क्लैप्टोमैनिक का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसे जन्म से चोरी करने की बीमारी हो, मतलब है जन्मजात चोरी करने की बीमारी से ग्रसित है। इसका मतलब है कि वो जन्मजात जो है चोरी करने की बीमारी से ग्रसित है। He is just a congenital kleptomanic, कि वह केवल congenital kleptomanic है, मतलब उसे जन्मजात जो है चोरी करने की बीमारी है, मतलब वो जन्मजात चोरी करने की बीमारी से ग्रसित है। That's all, केवल इतना। The governor was tempted to add something else. The governor, ये सारी बातें कौन बता रहे हैं? सारी बातें बता रहे हैं गवर्नर, उसी के पास इंफॉर्मेशन होगी इवांस के बारे में। सेक्रेटरी क्या पता उसके बारे में? इवांस के बारे में सेक्रेटरी क्या पता? वो तो केवल एग्जाम करवाना जानता है, उसे केवल एग्जाम करवाने के बारे में मालूम होगा, कैसे करवाते हैं। ऑल द इंफॉर्मेशन इज बीइंग गिवन बाय द गवर्नर। द गवर्नर वाज टेम्प्टेड टू ऐड समथिंग एल्स, और गवर्नर जो कुछ और ऐड करने के लिए लायक था, मतलब कुछ और कहना चाहता था इवांस के बारे में। द गवर्नर ऑफ ऑक्सफोर्ड प्रिजन वाज टेम्प्टेड टू ऐड समथिंग एल्स, वो कुछ और जो है ऐड करना चाहता था उस इंफॉर्मेशन में जो कि मांगी गई थी या पूछी गई थी सेक्रेटरी के द्वारा। बट ही थॉट बेटर ऑफ इट, लेकिन उसके बारे में उसने कुछ अच्छा सोचा। ही वुड लुक आफ्टर दैट पर्टिकुलर साइड ऑफ थिंग्स हिमसेल्फ, कि इस पक्ष के बारे में he will look after, वो देख लेगा। he will look after that particular side of things himself, इस पक्ष के बारे में जो भी सारी बातें हैं वो खुद देख लेगा, अब सारी बातें फोन पे क्या करें, वो अपने आप मैनेज कर लेगा, अपने आप देख लेगा। जो भी सब इधर उधर की बातें हुई, इस साइड की पर्टिकुलर्स बातें हुई, उसको लेकर के उसके कंजानिटल क्लैप्टोमैनिक या फिर वो इमिटेशन को लेकर जो भी बातें हैं वो सब मैनेज कर लेगा, अपने आप देख लेगा। ऐसा कुछ लिखा है यहाँ पर,
ऐसा ही लिखा है यहाँ पर। He will look after that. He will look after that. वो देखेगा that particular side of things himself. इस particular side के बारे में अपने आप खुद देख लेगा। Presumably शायद, presumably का मतलब होता है शायद। Said the secretary, secretary ने कहा शायद। You can arrange a room where, आप वहाँ पर एक रूम की व्यवस्था कर लें, शायद वहाँ पर एक कमरे की व्यवस्था कर लें। No problem, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कन्वर्सेशन हो रहा है बट यहाँ लिखा हुआ नहीं है द गवर्नर सैड, द सेक्रेटरी सैड, ऐसा लिखा हुआ नहीं है। वो लाइन बता रही है यहाँ पर किसने बोला होगा। नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि रूम की व्यवस्था सेक्रेटरी तो करेगा नहीं वहाँ पर अपने उस बोर्ड के अंदर, वो जहाँ एग्जाम होगा वहीं रूम की व्यवस्था करवाई जाएगी। सो नो प्रॉब्लम, ही इज इन सेल ऑन हिज आउन, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने ही इज इन अ सेल ऑन हिज आउन, वे अपनी खुद ही कोठरी के अंदर है, अपने खुद के सेल में। सेल का मतलब जो कैद होती है वहाँ उसके अंदर है वो। इफ यू हैव नो ऑब्जेक्शन, अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन ना हो, इफ यू हैव नो ऑब्जेक्शन, अगर आपको ऑब्जेक्शन ना हो, ही कैन सिट द एग्जाम इन देयर, ही कैन सिट द एग्जाम इन देयर, वे वहाँ बैठ के एग्जाम दे सकता है। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो, कोई दिक्कत ना हो, तो वह वहाँ बैठ कर एग्जाम दे सकता है। दैट्स फाइन, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। And we could easily get one of the parsons from St. Mary Max to invigilate if that's we'll speak about this, what is that. That's fine, ये अच्छी बात है, ये अच्छी, ये बढ़िया है। And we could easily get one of the parsons from St. Mary Max, और हमें St. Mary Max से, हमें St. Mary Max से आसानी से जो है कई पादरियों में से एक पादरी मिल जाएगा। पार्सन का मतलब होता है पादरी, इट इज स्टैंड फॉर इन्विजिलेटर, इन्विजिलेट एग्जाम लेने वाला। एंड वी कुड ईजिली गेट वन ऑफ द पार्सन्स फ्रॉम सेंट मैरी मैक्स, और हमें सेंट मैरी मैक्स से आसानी से एक पार्सन मिल जाएगी, पादरी, पार्सन नॉट पार्सल, पार्सन मिल जाएगा, पार्सन पादरी होता है। टू इन्विजिलेट, क्या करने के लिए? इन्विजिलेट करने के लिए। और इन्विजिलेशन का काम यहाँ पे कौन करेगा? as we have talked about the same character and his name is मैक्लेरी। क्या नाम है? मैक्लेरी। So fine, अच्छी बात है, हमें आसानी से वहाँ से एक पार्सल मिल जाएगा इन्विजिलेट करने के लिए, इन्विजिलेशन करने के, इन्विजिलेटर के फॉर्म में। इफ दैट्स लिखा हुआ नहीं कुछ यहाँ पे, इसका मतलब होगा इफ दैट्स सूट यू, अगर ये आपको सूट करता है तो, अगर ये आपको सूट करता है तो हमें आसानी से वहाँ से एक पार्सल मिल जाएगा। फाइन, यस, अच्छा, ठीक है। They seem to have a lot of person there. They seem to have a lot of person there. और वहाँ पे बहुत से पार्सन जो हैं दिखाई देते हैं, वहाँ बहुत से पार्सन हैं, वहाँ बहुत से पादरी हैं सेंट मैरी मैक्स में। Don't they, क्या वो नहीं है क्या उनके पास? The two men chuckle good naturally, और दोनों आदमी जो है इस तरह की बातें करते हुए जो है आपस में हंसी मजाक करते हुए, चकल का मतलब मुंह दबा के हंसते हैं, मतलब खुल के नहीं, चकल का मतलब होता है ऐसी मुस्कुराहट जिसमें आप अपना माउथ ओपन ना करें, आपके टीथ नजर ना आए, उसे चकल करना बोलते हैं। सो द टू मैन चकल गुड नेचुरली, दोनों मैन चकल करते हैं मतलब आपस में मुस्कुराते हैं, नेचुरली, स्वाभाविक रूप से, अच्छी तरह से। एंड द सेक्रेटरी हैड अ फाइनल थॉट, और सचिव जो है फाइनल थॉट लेते हैं, मतलब अंतिम बार विचार करते हैं। एट लीस्ट देयर इज वन थिंग, कम से कम एक बात यहाँ पर है, यू शुडंट हैव मच ट्रबल कीपिंग हिम इनकम्युनिकेटिव, यू शुड यू, the question is asked by the secretary. The secretary, you shouldn't have much trouble keeping him incommunicado. Incommunicado, incommunicado, incommunicado का एक होता है communicado, communication, incommunicado means barriers आना, मतलब वर्जित करना उसको बात करने से। तो the question is asked by the secretary here from the governor, you shouldn't have much, at least there is one thing, एक बात यहाँ पर है जो मुझे पूछनी है, एक बात यहाँ पर है, कॉल पे बात हो रही है, मुझे एक बात यहाँ पर है, मुझे पूछना है, एक बात यहाँ पर है। एट लीस्ट देयर इज वन थिंग, यू शुडंट हैव मच ट्रबल कीपिंग हिम इनकम्युनिकेटो, कि आपको जो है उसे इनकम्युनिकेटो करने में, मतलब उसे वार्तालाप से वर्जित करने में कोई ट्रबल नहीं होना चाहिए। वो किसी से बात ना कर पाए, वो किसी से कन्वर्सेशन ना कर पाए, बात ना हो पाए उससे किसी से, उसका इनकम्युनिकेटो पूरा का पूरा रहे, मतलब वो कम्युनिकेशन ना कर पाए किसी से, कम्युनिकेशन बिल्कुल ना कर पाए, इस चीज को लेके आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई ट्रबल नहीं होना चाहिए। श्योर यू, क्या आपको है क्या कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है क्या? द गवर्नर चकल पोलाइटली, गवर्नर की बात सुन के चकल पोलाइटली, बड़ी विनम्रता से चकल करते हैं, बड़ी मुस्कुराहट देते हुए, बड़ी हंसते हुए, हल्का सा पोलाइटली, बड़ी विनम्रता से बोलते हैं। वंस मोर, एक बार फिर से हंसते हैं। रिट्रेटेड हिज थैंक्स, और अपने धन्यवाद को दोहराते हैं, मतलब उसका जवाब नहीं दिया, बस हंस लिए वो, और हंस हंस मुस्कुराहट से सब कुछ क्लियर हो गया
कि कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर. ओके, सो गवर्नर चकल पोलाइटली वंस मोर. गवर्नर एक बार फिर से जो है चकल पोलाइटली, मुस्कुराते हैं पोलाइटली, बड़ी विनम्रता से. रिट्रेटेड हिज थैंक्स, अपने धन्यवाद को फिर से दोहराते हैं. एंड स्लोली क्रैडल द फोन. दोहराने का मतलब क्या है? ही सेड थैंक यू वेरी मच, थैंक यू. ओके, एंड स्लोली क्रैडल द फोन, एंड स्लोली क्रैडल द फोन. और बड़े धीरे से, बड़े स्लोली, बड़े धीरे से फोन को क्रैडल द फोन. क्रैडल का मतलब होता है चोगा होता है. वैसे आजकल तो मोबाइल फोन अवेलेबल है, पहले वो डायल करने वाले फोन आते थे रिंग टाइप में, उसमें एक क्रैडल होता था. क्रैडल उसका एक रिसीवर था. क्रैडल उसको बड़े आराम से रखना पड़ता था. ओके, एंड स्लोली क्रैडल द फोन, बड़े स्लोली, बड़े आराम से फोन को रखते हैं. Evans, नाम आया यहाँ पर. he called Evans the break as the prison officers call him. कॉल बंद हुआ सारा, जैसा भी था सब कुछ हो चुका है यहाँ पर. ओके, अब देखते हैं प्रोसेस यहाँ पर क्या है. यहाँ लिखा हुआ यहाँ पर, आई हैव मेंशन यू दैट स्लोली क्रैडल द फोन. अपनी बात दोहराते हुए, अपने धन्यवाद को दोहराते हुए स्लोली क्रैडल द फोन. वो धीरे से फोन के रिसीवर को क्रैडल को रख देते हैं. Evans the break as the prison officers call him. अब स्टोरी चल रही है आपकी. Evans the break as the prison officer calls him. और जैसा कि प्रिजन ऑफिसर्स उसे बुलाते हैं, उसे किस नाम से बुलाते हैं? Evans the break. Evans the break क्यों बोलते हैं उसे? Evans the break का मतलब Evans तोड़ने वाला. क्या तोड़ने वाला? जेल तोड़ने वाला. Evans the break as the prison officers call him. और जैसा कि प्रिजन ऑफिसर्स उसे बुलाते हैं, उसे पुकारते, क्या बुलाते हैं? Evans the break. Evans ब्रेक करने वाला, Evans तोड़ने वाला. क्या तोड़ने वाला? जेल तोड़ने वाला. Thrice he had escaped from prison. 3 बार वह जेल तोड़ के भाग चुका है, जेल से भाग चुका है. Thrice he had escaped from prison. और 3 बार वह जेल तोड़ के भाग चुका है. 3 बार वह जेल तोड़ के भाग चुका है. Thrice he had escaped from prison. मतलब 3 बार वो जेल से बच के भाग चुका है. And but for the recent waves of unrest, 3 बार भाग चुका है. यहाँ पर क्यों? यहाँ पर क्यों? ऑक्सफोर्ड प्रिजन में गवर्नर के पास क्यों? ऑक्सफोर्ड प्रिजन में क्यों? रीजन यहां लिखा हुआ है. एंड फॉर द रिसेंट वेव ऑफ अनरेस्ट इन द मैक्सिमम सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नॉर्थ, की उत्तर दिशा में. कहां पर? उत्तर में अत्यधिक सुरक्षा वाले संस्थानों में बहुत ज्यादा अशांति होने की वजह से. कि उत्तर में, नॉर्थ में मैक्सिमम सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट, अत्यधिक सुरक्षा वाले संस्थानों में, जो वहाँ पे जो भी ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर है, जो प्रिजन वहाँ, जो क्या नाम है, प्रिजन वहाँ पर है, कैद वहाँ पर है. सो एंड बट फॉर द रिसेंट वेव ऑफ अनरेस्ट का मतलब होता है अत्यधिक अशांति की लहर. अत्यधिक अशांति की लहर, रिसेंट का मतलब हाल ही में. बट फॉर द रिसेंट वेव ऑफ अनरेस्ट इन द मैक्सिमम सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नॉर्थ, लेकिन नॉर्थ में, उत्तर दिशा में अत्यधिक सुरक्षा वाले संस्थानों में, अत्यधिक सुरक्षा वाले संस्थानों में अशांति की लहर होने की वजह से वहां पे बहुत ही वॉयलेंस है. अभी रिसेंटली वहां बहुत वॉयलेंस चल रहा है. ही वुडंट नाउ बी ग्रेसिंग द गवर्नर्स प्रेमिसेस इन ऑक्सफोर्ड. अगर वहां पे वॉयलेंस नहीं चल रहा होता, वहां पे अशांति नहीं चल रही होती, कहां पे? नॉर्थ में, तो वे यहाँ पर ही वुडंट नाउ बी ग्रेसिंग द गवर्नर्स प्रेमिसेस इन ऑक्सफोर्ड, वे ऑक्सफोर्ड में गवर्नर की कृपा का पात्र नहीं बन रहा होता. अगर नॉर्थ में अत्यधिक सुरक्षा वाले संस्थानों में, उन जेलों में अगर अनरेस्ट नहीं होता, अशांति नहीं होती, वॉयलेंस नहीं होता, तो यहाँ पे गवर्नर की जेल में नहीं होता, उसकी कृपा का पात्र नहीं बन रहा होता, उसका ग्रेस नहीं प्राप्त कर रहा होता. एंड द गवर्नर वाज गोइंग टू मेक एब्सोल्युटली सर्टेन दैट. और गवर्नर जो इस बात को सुनिश्चित कर लेना चाहता था, और गवर्नर इस बात को सुनिश्चित कर लेना चाहता था, किस बात को? दैट ही वुडंट बी डिस्ग्रेसिंग देम. कि वह कौन? वह है इवांस, जेम्स रॉड्रिक इवांस जो है, उसे डिस्ग्रेस नहीं करेगा उन लोगों को, उनको कलंकित नहीं करेगा. 3 बार तो पहले भाग चुका है बच करके, और अब इस बात को गवर्नर, एग्जाम होगा ना तो सब कुछ सोचना पड़ रहा है, मन में बातें आ रही, बातें हो रही है. इस बात को गवर्नर सुनिश्चित कर लेना चाहता था. किस बात को? द गवर्नर वॉज गोइंग टू मेक एब्सोल्युटली सर्टेन दैट. गवर्नर जो इस बात को सुनिश्चित करने जा रहा था, सर्टेन करने जा रहा था, दैट ही वुडंट बी डिस्ग्रेसिंग देम, कि वह उन्हें डिस्ग्रेस नहीं करेगा, उन्हें कलंकित नहीं करेगा. किन्हें? अरे हम ऑफिसर्स को कलंकित नहीं करेगा एस्केप करके यहां से भाग जाने में. ओके, नॉट दैट इवांस वाज अ रियल बर्डन, नॉट दैट इवांस वाज अ रियल बर्डन. ऐसा नहीं था कि इवांस एक रियल बर्डन था, एक वास्तविक बोझ था. जस्ट अ परसिस्टेंट, एक जिद्दी था,
एक परसिस्टेंट था, जिद्दी था, नैगिंग परेशान करने वाला, नैगिंग प्रेजेंस, उसकी प्रेजेंस परेशान करने वाली थी। ही वुड बी ऑल राइट इन ऑक्सफोर्ड द, यद्यपि वह ऑक्सफोर्ड में ऑल राइट होगा, बिल्कुल सही होगा। द गवर्नर वुड सी टू दैट, और गवर्नर खुद देखेंगे ऐसा कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, और गवर्नर खुद देखेंगे ऐसा कहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए। वुड सी इट टू इट पर्सनली, पर्सनली देखेंगे, खुद व्यक्तिगत रूप से सब कुछ वॉच करेंगे कहीं मिस्टेक ना हो जाए। And besides, there was just a possibility that Evans was genuinely interested in O-level German. And besides, और इसके साथ साथ, इन सारी प्रिकॉशंस के साथ साथ, इन सभी टेंशन के साथ, इन सभी अनरेस्ट ऑफ वेव्स के साथ, एक बात और वहाँ पर थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, और वो ये थी, besides का मतलब इसके साथ, there was just a possibility that Evans was genuinely interested in O-level German. There was just a possibility, कि थोड़ी संभावना वहाँ पर इस बात की भी थी, कि थोड़ी सी पॉसिबिलिटी इस बात की भी थी that Evans was genuinely interested in O-level German, कि इवान जो है O लेवल के जर्मन एग्जामिनेशन में वास्तविक रूप से इंटरेस्टेड था। ये बात इंपॉर्टेंट है। अगर कोई कैदी पढ़ना चाहता है और पढ़ने के बाद एग्जाम देना चाहता है तो अच्छी बात है ना, प्रॉब्लम ही है इसके अंदर। तो इसके साथ साथ एक बात ये वाली भी थी, जस्ट अ स्लाइट पॉसिबिलिटी, थोड़ी सी पॉसिबिलिटी थी इस चीज़ की, थोड़ी सी पॉसिबिलिटी थी, जस्ट अ वेरी स्लाइट पॉसिबिलिटी, थोड़ी सी संभावना थी किस चीज़ की, जेल से भाग जाने की। एट 8:30 PM ऑन मंडे 7 जून, और मंडे 7 जून के सोमवार को सुबह मॉर्निंग में, शाम को मॉर्निंग में 8:30 PM ऑन मंडे 7 जून, मंडे 7 जून 7 जून को इवान जर्मन टीचर shook him by the hand। इवनिंग में 8:30 PM में इवांस के जर्मन टीचर ने shook him by the hand, उससे हाथ मिलाया। इवनिंग में 8:30 PM पर 7 जून को सोमवार को इवांस के जर्मन टीचर ने shook him by the hand, उससे हाथ मिलाया in the heavily guarded recreational block। heavily guarded का मतलब मैक्सिमम सिक्योरिटी वाले, अत्यधिक सुरक्षा वाले रिक्रिएशनल ब्लॉक में, जो मनोरंजक कक्ष होता है, रिक्रिएशनल ब्लॉक होता है जहां पे बहुत सिक्योरिटी होती है। ओके, जस्ट अक्रॉस फ्रॉम डी विंग, जो कि डी विंग से उस पार था, डी विंग के बिल्कुल पार था, उस जगह पर, उस कक्ष में जो है इवांस के जर्मन टीचर ने इवान से जो है हाथ मिलाया। ओके, आई रिपीट द लाइन अगेन। एट 8:30 PM ऑन मंडे 7 जून, इवांस जर्मन टीचर ने shook him by the hand, उसका shook him by the hand, shook का मतलब ऐसे हिलाना होता है, यहाँ पे हाथ मिलाया in the heavily guarded recreational block। कहाँ मिलाया? heavily guarded recreational block, heavily guarded, जहाँ पे heavily guarded था, बहुत मैक्सिमम सिक्योरिटी था, बहुत सुरक्षा थी, उस रिक्रिएशनल ब्लॉक में, उस मनोरंजक कक्ष में हाथ मिलाया। और वो कक्ष कहाँ पर था, वो रूम कहाँ पर था? जस्ट अक्रॉस फ्रॉम डी विंग के उस पार था। क्या कहा जर्मन टीचर ने कहा, Guten Glück, Herr Evans. Here actually the given sentence in the German language के टीचर है, जर्मनी में तो कुछ ना कुछ बात होगी ही। तो इवान से कहा Guten Glück, Herr Evans, और Guten Glück is the word in German। Herr का मतलब होता है मिस्टर इवांस, कि मिस्टर इवांस Guten Glück। पार्डन, इवांस ने कहा माफ करना, मुझे समझ नहीं आया, क्या कहा आपने? पार्डन, सॉरी, क्या कहा आपने? I said good luck for tomorrow। मैंने कहा good luck for tomorrow। So the meaning of Guten Glück in the German language, the German word which is mentioned here, Guten Glück, which means is good luck। इसका मतलब होता है good luck, and the word HERR here means Mr. Evans। So Guten Glück है Evans, pardon, Evans ने कहा माफ करना मुझे। I said मेरे कहने का मतलब है good luck, मेरे कहने का मतलब है गुड लक फॉर टुमारो, कल के लिए गुड लक, कल तुम्हारा एग्जाम है ना। ओ थैंक्स, आई मीन डैंके शॉन, ओ थैंक्स, धन्यवाद आपका। नहीं, उसने भी जर्मन लैंग्वेज बोलेगा, सोचा फिर कहा आई मीन, मेरे कहने का मतलब है डैंके शॉन का मतलब थैंक यू, धन्यवाद आपका, डैंके शॉन इन जर्मन लैंग्वेज। ओके, यू हैवंट अ कैट इन हेल्थ चांस ऑफ गेटिंग थ्रू ऑफ कोर्स, बट यू हैवंट a cat in health chance, और cat in health chance का मतलब होता है no possibility, cat in health chance means no possibility, कोई possibility नहीं है, कोई संभावना नहीं है,
टीचर ने क्या बोला? टीचर ने कहा यू हैवंट अ कैट इन हेल्थ चांस ऑफ गेटिंग थ्रू, ऑफ कोर्स कि सुनिश्चित रूप से तो यू हैवंट अ कैट अनहेल्थ चांस ऑफ गेटिंग थ्रू, और गेटिंग थ्रू का मतलब होता है एग्जाम में पास होना। एग्जाम में पास होने की तुम्हारी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ऑफ कोर्स सुनिश्चित रूप से, बट लेकिन कुछ कहा नहीं, बस कहा कि कोई पॉसिबिलिटी नहीं है एग्जाम में गेटिंग थ्रू होने की, पास होने की। इवांस कहता है फिर आई मे सरप्राइज एवरीबडी सर इवांस। इवांस ने कहा कि मैं सबको सरप्राइज कर दूंगा, मैं हर किसी को सरप्राइज कर दूंगा, मतलब कुछ ऐसा करूंगा एग्जाम में, मैं हर किसी को सरप्राइज कर दूंगा। अब बातें का भी अच्छी है, एग्जाम की बात है, लेकिन भूल रहे हैं वो 3 बार भाग चुका है बचकर पहले भी। आई मे सरप्राइज, यही तो कहानी है, केवल चैप्टर का नाम यहाँ पर इवांस ट्राइज ओ लेवल, कि इवांस ओ लेवल को ट्राई करता है, लेकिन वो कुछ और ही ट्राई करता है। रियलिटी यहाँ पर है वो कुछ और ही ट्राई कर रहा होता है। एक वेल लेड प्लान, आई मेंशन इट दैट ही बिफोर्स द प्रिजन ऑफिसर। I already mentioned the very first line when I presented introduction in front of you, for all of you. I told you that मैंने कहा था आपसे he befools the prison officers under a well laid out plan, और प्लान चलेगा सब इस एग्जाम की छाया तले। Under the shelter of this examination, he would make a well laid out plan. Okay, कहने वो एग्जाम है लेकिन होगा कुछ और ही यहाँ पर। I may surprise everybody said Ivan. इवान ने कहा कि मैं हर किसी को सरप्राइज कर दूंगा, हर किसी को मैं सरप्राइज करूंगा, मैं आश्चर्यचकित कर दूंगा हर किसी को। At 8:30 द फॉलोइंग मॉर्निंग, और उस सुबह 8:30 मॉर्निंग में 8:30 PM, इवान सेड अ विजिटर, इवान से मिलने के लिए कोई आया, इवान से कोई मिलने के लिए आया। 2 विजिटर्स, 2 मिलने के लिए आए लोग, 2 लोग मिलने के लिए आए। इनफैक्ट वास्तव में he tucked his grubby string vest into his equally grubby trousers, और जब मिलने के लिए आए उससे 2 लोग विजिट करने के लिए आए, 2 विजिटर्स आए, तो क्या किया उसने? He tucked means डाल लेना, he tucked his grubby string vest, और grubby का मतलब होता है मैली व गंदी, string vest का मतलब होता है बनियान जो बाहर निकली हुई थी ट्राउजर के, तो उसने अपनी गंदी और मैली कह सकते हो, grubby means गंदा या मैला, गंदी और मैली, string vest का मतलब होता है बनियान जो है अपनी, into his equally grubby trousers, समान रूप से गंदे, उतने ही बराबर गंदा उसका ट्राउजर भी था, उस गंदे में, उस ट्राउजर में उसने अपनी बनियान डाल ली। तो जब 2 विजिटर मिलने के लिए आए इवान से मॉर्निंग में, सुबह he tucked his grubby string vest, उसने अपनी grubby string vest, अपनी गंदी सी जो बनियान है अपने ट्राउजर में डाल ली। And stood up from his bunk, और अपने बंक से खड़ा हो गया। बंक का मतलब होता है स्लीपिंग टेबल, जहाँ जिस पर वो सोता है, उस बंक पे, टेबल पे। And stood up from his bunk, और अपने बंक से खड़ा हो गया। Smiling cheerfully, और बड़े चेयर होकर के, बड़े प्रसन्न होकर मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है। मॉर्निंग मिस्टर जैक्सन, कहा मॉर्निंग मिस्टर जैक्सन, मॉर्निंग मीन्स गुड मॉर्निंग, से गुड मॉर्निंग मिस्टर जैक्सन, दिस इज इंडीड एन ऑनर, ये बड़े सम्मान की बात है मेरे लिए। जैक्सन वाज द सीनियर प्रिजन ऑफिसर ऑन डीविंग, डीविंग के पार क्या था, अक्रॉस क्या था, रिक्रिएशनल वॉक था, जहाँ पे जर्मन टीचर मिलने के लिए आए थे, शुक हैंड किया था, याद होगा आपको, बताया मैंने भी आपको, आई जस्ट मेंशन बिफोर सम लाइंस। तो यहाँ पे जैक्सन सामने है, उसे कहा मॉर्निंग मिस्टर जैक्सन, गुड मॉर्निंग मिस्टर जैक्सन। जैक्सन वाज द सीनियर प्रिजन ऑफिसर ऑन डी विंग, और जैक्सन जो है डी विंग पर क्या थे, सीनियर प्रिजन ऑफिसर थे। आई मेंशन यू दैट, बता चुका था मैं आपको। जैक्सन वाज द सीनियर प्रिजन ऑफिसर ऑन डी विंग, और जैक्सन जो है डी विंग पर सीनियर प्रिजन ऑफिसर थे। एंड ही एंड इवान हैड ऑलरेडी बिकम वॉर्म एनिमीज, और जैक्सन और इवान जो है पहले से ही वॉर्म एनिमीज बन चुके थे, मतलब कट्टर दुश्मन बन चुके थे। दुश्मन का मतलब कड़े दुश्मन बन चुके थे, वॉर्म एनिमीज थे। ओके, एट जैक्सन साइड स्टूड ऑफिसर स्टीफन, और जैक्सन के बगल में एक और ऑफिसर थे, नाम है उनका स्टीफन। क्या नाम है? स्टीफन खड़े थे, जैक्सन के बगल में स्टीफन खड़े थे। बर्ली शर्ली लुकिंग मैन, और जो स्टीफन थे वो भी ऑफिसर ही थे वहाँ पे, प्रिजन ऑफिसर। 2 prison officer we have, Mr. Jackson the senior one and Mr. Stephen the junior one. At Jackson's side, Jackson के साथ में stood officer Stephens. Officer Stephens खड़े थे। A burly shirley looking man, बड़े हष्ट-पुष्ट दिखाई देने वाले व्यक्ति थे, मतलब काफी डील डॉल, काफी हष्ट-पुष्ट थे, बड़ी काफी फिजिकली फिट थे। Burly shirley only recently recruited to the profession, और इस व्यवसाय में अभी हाल ही में उनका रिक्रूटमेंट हुआ था, उनका भर्ती हुआ था, उनको लिया था, सिलेक्शन हुआ था।
only recently recruited to the profession और to the profession इस ऑफिसर इस पुलिस ग्रेड में, उस पुलिस की जॉब में अभी हाल ही में उनका रिक्रूटमेंट हुआ था। जैक्सन नॉडेड कर्टली, और जैक्सन ने बड़े कर्टली, बड़े संक्षिप्त में नॉड किया, धीरे से नॉड किया, हाँ हिलाया। क्या हिलाया? जब उसने कहा गुड मॉर्निंग कहा होगा तो ऐसे किया। एंड हाउज द लिटिल आइंस्टीन दिस मॉर्निंग देन, और उसे मॉक करके बोला। और जैक्सन को जब कहा गुड मॉर्निंग मिस्टर जैक्सन, तो उसका जवाब यहाँ पर अब आया। उसने ऐसा किया हल्का सा, उसने केवल ऐसा किया और सवाल किया इवान से। किससे किया? इवान से सवाल किया एंड हाउज द लिटिल आइंस्टीन दिस मॉर्निंग देन, तो इस सुबह हमारा आइंस्टीन कैसा है? इस सुबह हमारा छोटा सा आइंस्टीन कैसा? उसे मॉक करके बोल रहा है, मजाक करके बोल रहा है। आइंस्टीन बोल रहा है, एग्जाम की तैयारी कर रहा है। ओके, ही हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर द जर्मन लेवल ओ लेवल एग्जामिनेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम, सो दैट्स व्हाई ही इज मॉकिंग एट इवांस बाय सेइंग दैट लिटिल आइंस्टीन। उससे आइंस्टीन करके बोल रहा है जैक्सन। यहाँ पे जैक्सन कह रहा है आइंस्टीन बुला रहा है उसको। अब आइंस्टाइन जो है, विलर आइंस्टीन जो है, अब वो है कौन ये तो इवांस को पता नहीं है इसके बारे में। अब इवांस इसके बारे में सवाल करेगा, लेकिन सवाल अभी नहीं करेगा, वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में करेगा। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इट्स ऑल अबाउट टुडे।